So we are writing the question answer of the gift of Magi. A story by O. Henry. So the first question, how did Della save her $1.87? सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर होता है, हाउ मच डिड डेला सेव, उसने कितने पैसे सेव किए. So Della saved 87 cents, $1.87. MCQs में wrong मत कीजिएगा. One question already has one answer. How much had Della saved for Christmas? So she had saved $1.87. But the question here is, how did Della save this money? So Della had saved the money by bargaining hard about prices with the grocer and vegetable man and the butcher. इसका मतलब होता है वो घर के खर्च में पैसे बचा करके बार्गेन करके वेजिटेबल्स में, ग्रोसरी में, हर जगह वो पैसे कम दे करके बार्गेन करके मोल भाव करके वो पैसे बचाता है उसमें. Second question. The writer gives details of Jim's flat. Pick out the details. Jim's के flat का description है और Jim is Della's husband. They are young American couple और इनका flat बहुत lavish नहीं था, बहुत costly नहीं था. The writer has used the word shabby. इसका मतलब होता है उतना अच्छा भी नहीं था, poorly decorated था. But the answer is describe the details of Jim's flat. It was a furnished flat at $8 per week. So how much was he paying? He was paying only $8 per week. There was nothing to describe, और उसमें describe करने वाली बात कुछ नहीं थी. In the vestibule below was a letter box. Vestibule का मतलब होता है एक खिड़की के नीचे एक लेटर बॉक्स था जिसमें कभी कोई लेटर आता नहीं था और न वो कहीं लेटर भेजते थे. A letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax the ring. और डोरबेल था जो कि खराब हो चुका था. They did not have even the money to fix that. उसको ठीक करने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास. कोक्स का मतलब होता है कोई भी इंसान घंटी दबाने में कामयाब नहीं था, इसलिए वो काम ही नहीं करता. Because the doorbell was not working. Attached to the button was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young. और उसके नीचे एक नेम प्लेट था जिसका जो लिखा हुआ था Mr. James Dillingham Young. So this is the full name of the person, the main characters of the Gift of Magi, James and Della. Mr. James Dillingham Young. This was his full name. एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स अभी आपके सामने आ रहे हैं. So what was the name of Mr. James? What was the surname of Mr. James? So description के लिए क्या था? एक shabby सोफा था, मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ था. वो इसमें डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट मैं बता देती हूँ. एक सोफा था जिसका रंग उड़ चुका था, जो कि कहीं से प्रेजेंटेबल भी नहीं था, बट रंग उड़ा हुआ था और नॉट न्यू, ओल्ड सोफा. और अपना कहने के लिए उनके पास कुछ ऐसा था नहीं, सिर्फ एक लेटर बॉक्स था जिसमें चिट्ठी आती थी न जाती थी कहीं, और एक इलेक्ट्रिकल बटन था जो कि कॉल बेल, जो कि इट वाज नॉट वर्किंग, एंड देयर वाज अ name plate of Mr. James Dillingham Young. Question 3.
The card bearing the full name of Jim now had only one letter D on it. State whether the statement is true or false. True or false? It is true. James Dillingham Young, it only has D on it. So it is D का ILING सब मिट चुका था, सब गिर चुका था लेटर उसका, सिर्फ D बाकी था, which is true. Question number 4. What were the most precious possessions of Jim and Della? What was the most precious possession? So the possession which they were taking pride into it was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's before him, ancestral watch था उसका, and Della's possession was a long. मैम क्वेश्चन नहीं समझे मैम. कौन सा क्वेश्चन नहीं समझे? 4 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, बोल रहा है. उनके पास दो बेशकीमती चीजें क्या थी? दो ही चीज होती उनके पास जो कि प्रेशियस थी. प्रेशियस पोजीशन मतलब कि सबसे ज्यादा कीमती उनके पास जो चीजें थी वो क्या थी? वो एक था जिम का एंसेस्ट्रल वॉच, जो खानदानी घड़ी थी उसके पास वो, और दूसरा डेला के लॉन्ग हेयर, लॉन्ग रिपलिंग शाइनिंग हेयर दैट फेल डाउन a cascade of brown water. उसकी पानी की तरह वो ऊपर से नीचे गिरते जैसे धारा कोई बहती है उस तरह से उसके बाल थे. ठीक है, आप अपना लैंग्वेज लिखिएगा, ये लैंग्वेज छोड़ दीजिए, मैं आपको भी समझा देती हूँ. राइट. क्वेश्चन नंबर 5. How has the writer compared Della's hair to Queen of Sheba's jewels? तो राइटर ने कंपेयर किया कि उसके बाल इतने ब्यूटीफुल थे कि क्वीन ऑफ शीबा भी उसके लिए उसकी तरफ बाल पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी. एक इतनी कीमती चीज थी कि अपने सारे ज्वेलरी दे करके भी वो एक रानी है, क्वीन ऑफ शीबा है, जो कि सारा कुछ दे करके भी डेला के तरह के बाल को लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी. The writer says that had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out from the window someday to dry, just to appreciate Her Majesty's jewel and gifts. समझा देते हैं. डेला ये सोचती थी कि अगर वो क्वीन मेरे घर के सामने रहती तो अपने बाल को हम सुखाते बालकनी में और वो कंपेयर करती अपनी पूरी ज्वेलरी से उसके बाल. तो पूरी क्वीन की ज्वेलरी एक तरफ और उसके बाल एक तरफ ऐसे कंपेयर किया गया. दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6. इसी तरह से जो राइटर का जो वॉच था वो कंपेयर किया गया था किंग सोलोमन ट्रेजर्स में. किंग सोलोमन बहुत ही अमीर रिच था, किंग था, पूरी उसकी ट्रेजर्स एक तरफ और जिम का वो घड़ी एक. The writer says that had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard with envy. तो वो बोलता है कि जब you first write down a
मैम किंग सोलोमन नहीं समझे मैम। वो एक राजा था, एक काल्पनिक ओ, कहानी है, ठीक है। किंग उन- उन- सोलोमन, उन- जैसे राजा उनका वॉच। हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र का सच जो मशहूर था, किंग सोलोमन की बहुत मशहूर थी उनकी अ, उनका ट्रेजर, उनका उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी। किंग सोलोमन एक किंग थे जो कि बहुत ही रिच थे, किंग ही थे, राजा ही थे तो रिच तो होंगे, उनकी संपत्ति एक तरफ, और क्वीन ऑफ शीबा भी बहुत क्वीन थी। तो जल डेला का बाल को कंपेयर किया गया है कि क्वीन ऑफ शीबा से, कि अगर वो सामने रहती, मेरे घर के सामने रहती फ्लैट के, तो अपने बाल वो सुखाती और वो हर बार देख के जलती उसको। और किंग सॉलोमन का कंपेयर किया गया है जिम के वॉच से। वो ये कह रहे थे, राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो आसपास रहते और जैनेटर रहते, या मतलब कि मेरे आसपास रहते, तो जब भी वो उनको क्रॉस करते तो उनको जलाने के लिए मैं उस घड़ी को निकालता, और वो देख करके जलते। जब भी मैं क्रॉस करता तो मैं घड़ी को निकाल के उनको जलाता, टाइम देखने के बहाने, ताकि वो हर बार देख करके वो मेरी घड़ी को देख के वो जलते। बस ये दो तरह से कंपेयर किया गया। पूरी कहानी आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपको, पहली बात तो ये है। कहानी पढ़ रहे मैम। हाँ, तो कंपेयर किया गया है, डेलर का हेयर को कंपेयर किया गया है उसके क्वीन ऑफ शीबा से, और किंग सॉलोमन को कंपेयर किया गया है उसकी घड़ी को जिम के वॉच से। ये दो क्वेश्चन अनइम्पोर्टेंट है, कोई ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर हर हेयर। आपको तो पता है कि जिम ने अपना, Ma'am, your screen is not visible now. हाउ माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। Yes, ma'am. I I don't think you know. not share your screen, ma'am. 1 मिनट। Yes, ma'am. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर हर हेयर। आपको तो पता है कि डेला 3 बार काउंट करती है और पैसे उतने नहीं है, और वो रोती है, वो घबरा जाती है, और वो सोचती है कि क्या करे, कल क्रिसमस है, एंड शी डज नॉट हैव एनी मनी। वो क्या करती है, शी वांट्स टू सेल हर हेयर, अपने बाल बेच देती है वो, और वो अपना बाल बेच करके क्या उसको मिलता है। व्हाट डिड डेला डिसाइड टू सेल, सॉरी, व्हाई डिड शी डिसाइड टू सेल हर हेयर। So Della wanted to buy a gift for Jim, and she had only $1.87, which was not sufficient to buy any gift. She had very little money, जिससे वो खरीद नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया, hence she decided to sell her hair and buy a good gift for the money she would get. She decided to sell her hair. Good afternoon, ma'am. The next question, question number 8. How much money did she get for her hair?
All these questions are for MCQs. You will understand the right answer. She got $20 for her hair. Please write down all the answers so that you do not miss your MCQ. Question number 9. What did Della buy for Jim? एक्सक्यूज मी मैम Yes, मैम क्लास कितने बजे से स्टार्ट हुई है? 1 बजे. तो मैम हम सबका शेड्यूल में 1:30 दिया हुआ है टाइमिंग. यस मैम. आप सबका 1:30 दिया हुआ है. मैम हम लोग का शेड्यूल में वन 1:30 में यस मैम 1:30 टाइमिंग यस दिया है. मैम 1:30 में दिया है मैम. अच्छा, आपका लंच ब्रेक था ना? कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर जाएंगे. तो मैम हम अपने टाइमिंग के रिकॉर्ड से अभी ज्वाइन किए हैं. कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. गिफ्ट ऑफ मिल जाएगा. तो कुछ लोग 1 बजे ज्वाइन कर लिए थे एक्चुअली. तो Yes, मैम ma'am. मतलब जो शेड्यूल में टाइम रहेगा वही ना. हाँ, आज लेकिन क्योंकि कुछ न्यू लोग- शेड्यूल है. हाँ, कुछ लोग ज्वाइन कर लिए थे तो हम चेक कर रहे थे कि सही है कि नहीं. सब माइक्रोफोन तो देखिए कुछ लोग ज्वाइन कर लिए. तो चलिए, मैम question- शेड्यूल के टाइमिंग से होगा कि 1 बजे से होगा वो बता दीजिए सिर्फ. नहीं, 1:30. ओके मैम ठीक है मैम. वैसे क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं हम लोग. गिफ्ट ऑफ मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9. What did Della buy for Jim? Della bought a platinum fob chain to be used for Jim's watch in place of the old leather strap that he used. तो उसने क्या बाय किया? She bought a platinum fob chain for Jim's watch. किसको रिप्लेस करने के लिए? लेदर स्ट्रैप उसके पास था जो कि पुराना हो गया था और वो she wanted to change that. Question number 10. How was the gift worthy for the watch? This is a very important question. Question number 10. वॉरी मतलब मैम गिफ्ट वॉरी एक लिखा हुआ है. WORTHY. Worthy. WO. यस मैम. उसका मतलब क्या हुआ? मतलब किस तरह से वो उसके लायक था? How was the gift worthy for the watch? उस गिफ्ट के वो वॉच तो बहुत कीमती था, तो क्या उसका वो उसके लायक था वो क्या? Yes, ma'am. था. हाँ. The platinum fob chain was simple and chaste in design. और राइटर ने तो ये भी कहा है कि it was very simple just like Jim. जिम भी बहुत शांत स्वभाव का इंसान था, चुपचाप रहता था, सिंपल था और शांत था और वेरी इंटेलिजेंट था और प्रेशियस था. जिम के डेला के लिए वो बहुत ही प्रेशियस था और इसलिए उसने ऐसा डिजाइन चूज किया जो कि सिंपल भी हो और बहुत ही बढ़िया हो. Chaste is very well designed, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation. मतलब कि झूठ मूठ का सजावट नहीं था उसमें, वाकई उसकी बहुत वैल्यू बहुत ज्यादा है. मेरिट्रिशियस का मतलब होता है ऊपर इसके जैसे कांच का कुछ लगा दिया, कुछ ऑर्नामेंटेशन कर दिया, सजा दिया, जो कि सिंपल चीज को बहुत बढ़िया दिखाने के लिए लोग ऑर्नामेंट कर देते हैं. लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया चीज थी, वहाँ बहुत ज्यादा इसको ऑर्नामेंटेशन की जरूरत नहीं थी.
वो ऐसा सिंपल चेन चूज किया था जो कि सिंपल था और जिसमें कोई सजावट की जरूरत ही नहीं थी, उसको खुद उसका वैल्यू था उसका सिंपलिसिटी। एंड प्लैटिनम इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल। Ma'am, turtle shelf. Hmm? What about? Hello. Question number 11. The writer says that platinum chain was like gem. How? तो डेला को क्यों पसंद आ गया वो चेन? इसलिए कि वो जिम की तरह सिंपल था, जिम की तरह प्रेशियस था और जिम की तरह वैल्यूएबल था। Della feel that the platinum chain was like gem, quietness and value, because वो हमेशा शांत रहता था, चुपचाप रहता था, and his simplicity was something to value. The description applied to क्वेटनेस मींस क्या बोले मैम? platinum, एक white metal होता है। नो मैम, क्वेटनेस Quietness मतलब शांत रहना। Quiet में हम लोग कहते हैं ना कि quiet, शांत रहो। ओके मैम, ओके मैम। तो क्वाइटनेस एंड वैल्यू जिम के साथ भी था एंड क्वाइटनेस एंड वैल्यू प्लैटिनम चेन के साथ भी। Question number 12. What did Della try to fix before Jim got home? सारे all the questions are for MCQ, ध्यान दीजिएगा। आपके मगध यूनिवर्सिटी PPU में भी MCQs ही आता है, तो प्लीज पे अटेंशन। क्या फिक्स की थी? Della tried to fix her chopped hair with curls before Jim got home. वो अपने बालों को जो उसने कटवा लिया था, तो जब घर आती है शॉप से तो वो देखती है कि अपने आप को मिरर में देखती है, तो उनको लगता है कि आई लुक लाइक अ बॉय। उसको लगता है कि शी रिजेंबल्स लाइक अ स्कूल बॉय। शक्ल उसकी लड़के की तरह, छोटी सी बाल कटने के बाद लड़के की तरह शक्ल उसकी लग रही थी, तो वो क्या करती है, कर्लर लगा करके वो अपना बाल को ठीक करती है। शी ट्राइज टू फिक्स हर हेयर। Della tried to fix her hair. Chop मतलब कटा हुआ। Chop is the wrong word used here. Cut hair with curls before Jim got home. सोचती कि जिम के आने के पहले वो अपने बाल को ठीक कर लेगी, और उसको ये डर था कि कहीं जिम देखेगा तो बाल कट गए हैं तो उसको ही विल नॉट लव मी एनीमोर। तो इसके लिए वो बहुत थोड़ी घबराई हुई थी कि हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए शी ट्राइज टू फिक्स हर हेयर। क्वेश्चन नंबर 13. What was Jim's reaction when he saw Della without her lovely hair? Answer can be he was angry, he was sad, he was quiet. Answer can be MCQs can be like this. तो बताना वो क्या किया वो? नॉट एंग्री मैम, मतलब White एंग्री तो नहीं। but sad. नहीं, he was not sad. He was surprised. No, he was not surprised. Ma'am, shocked. Yeah, stopped, ma'am, because not. हाँ, Jim was dumbstruck. Dumbstruck का मतलब होता है जैसे कि काट मार गया हो उसको। ये क्या? Yes. Dumbstruck मतलब ना किसी को काट मार गया हो, बहुत ज्यादा शॉक हो गया। Upon seeing Della, his eyes were fixed upon Della, and there was an expression in them that she could not read.
और उसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन था जो कि डेला को समझ में नहीं आ रहा। So Jim was dumbstruck, Jim was sad, Jim was upset, Jim was quiet, was angry. Number 14. What was Jim's gift for Della? Give a brief description of the gift. So Jim's gift for Della was a set of combs, side and back, that Della had worshipped long in a Broadway window. जो बहुत दिनों से वो आते जाते उसको देखती थी कि ये कोम है और उसको खरीदना चाहती थी, कि उसको पता था कि इसके पास पैसे कभी उतने होंगे नहीं और वो कभी खरीद नहीं पाएगी, लेकिन आते जाते वो उनको देखा करती थी। और जिम को इस बात की का पता था और वो उसने वही कोम को लेकर के इसको गिफ्ट किया। They were beautiful, expensive combs made of pure tortoise shell. Tortoise shell मतलब होता है कछुए का कवच। कछुए का कवच का शेल था उसका, with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful brown hair of Della. उसका भी शेड उतना ही अच्छा था और उतना ही बढ़िया लगता है और जिम के डेला के बालों पर बहुत सूट करता। Question number 15 is always coming in your exam. Were the gifts useful to each other? Yes. कोई No, 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 ma'am. no, 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 no. The gift were not useful useful No, the मैम। gifts were not useful to either of them. क्यों बताइए, आप because बताइए क्यों, why? because Della has sell their hair and Della had Jim has sold, yes ma'am sold their hair and the Jims had sell their watch. and James had sold Both his are watch. lost. Both are So, lost. so both the gifts Therefore, were, no, the gifts therefore were the not gift are useful for either of them. yes. Can be in true or false. The gifts were useful to them, true or false? False, ma'am. False. Question number 16. How did Della react when she saw Jim's gift to her? There was an ecstatic scream. मतलब इतना ज्यादा वो चिल्लाने लगी बिल्कुल पागलों की तरह, खूब चीख उसकी चीख निकल गई जब वो देखी कि बाल तो है नहीं और उसने गिफ्ट मेरे लिए क्या लाया है, तो बिल्कुल हिस्टेरिकल हो गई, उसको खूब जोर से चीखी वो। Then immediately there was a quick change of hysterical tears and wails, और उसके बाद वो तुरंत रोने लगी। वो इसलिए भी What, ma'am? चीखी, वो इसलिए भी चीखी थी कि वो बाल तो कट गए थे और जिम का इतना प्यार देख करके कि वो उसके लिए इतना मतलब कि अपने अपने वो इसको बेच करके लाया है, अपना वॉच बेच करके गिफ्ट लाया है, इसके लिए बिल्कुल इमोशनल हो गई और इसी इमोशन में वो रोने लगी और कंट्रोल नहीं उसे हो पा रहा था, वो रिश्कियां लेके रोने लगी। She recalled how much she had yearned for them. और उसको याद आने लगा था कितना ज्यादा उसको यर्न मतलब बहुत ज्यादा चाहती थी उसको खरीदना, उसको याद आने लगा। She recalled how much she had yearned for them. yearn मतलब बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होना, तो जाया करती थी, आते जाते वो देखती थी और चाहती थी उसको खरीदना, तो उसको याद आने लगा। She hugged him to her bosom and at length looked up with dim eyes and a smile and assured Jim that her hair would grow very fast. और उसको अपने पास रखी रही, अपने पास वो भींची रही और कुछ देर तक, और उसके बाद नम आंखों से वो देखती है जिम की तरफ और मुस्कुरा के बोलती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं।
Question 17. Jim and Ella both gave up something dear to them. What does it tell about them? उनके कैरेक्टर के बारे में क्या कहता है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे हम भी पूछने वाले हैं. पहले आप इसको समझ लीजिए, समझ में आ रहा है तो आप बोलना शुरू कर सकते हैं. मैम क्वेश्चन नंबर 17. हाँ. जिम एंड एला बोथ गिव अप समथिंग डियर टू देम. उन दोनों ने अपनी प्रेशियस चीज का त्याग किया था. What does it tell us about them? हम लोग को उनके बारे में क्या बताते हैं? Because they really loves too much with each other. इसी बीसी बाई फोको के भी है ना. हेलो. Very closely. Yes, ma'am. Okay, answer is we have already told them. Yes, what? Hello. We have already told that Jim and Ella are a loving couple. सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे? वो एक loving couple है. Everybody knows this, that Jim and Ella are one couple who are madly in love with each other. मैम आवाज कट कट क्या? अब मैं क्या करूं? No, ma'am. आवाज कट के नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है. No, ma'am. Properly. मैम रिज्वाइन कर रहा हूँ, ले लीजिए फिर से. यार तुम डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो तुम मेरा. कंटेंट को अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा तो बेहतर होगा. समझ लीजिए जरूर, लेकिन कंटेंट को इस कंटेंट को जरूर लिखिए ताकि कोई लैंग्वेज समझ में आ जाए किस तरह से लिखा जाता है. वैसे आई वुड अप्रिशिएट कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे. So we have already told that we already know that Jim and Ella are one loving couple. They are madly in love with each other. They are young and they are madly in love. Even in their exigent condition, the bad condition, even in their hopeless condition, they desire to get something for each other. Even after knowing the fact that the condition is not good, poor condition, helpless condition, hopeless condition, they want to give, they desire to give something to each other. Both keep their attempts to buy a gift a secret from each other. और दोनों अपने इस गिफ्ट को सीक्रेट रखना चाहते हैं. लोग बताना नहीं चाहते. गिफ्ट ऐसे भी लोग बता के नहीं देते ना, तो एक दूसरे से बचा के रखना चाहते हैं, सीक्रेट वर्क करके रखना चाहते हैं. In order to gather the money needed to buy a gift, they sell the most precious things. और खरीदने के लिए, in order to buy the gift, in order to get the money to buy the gift, they sell the most precious things they possess. Though their gifts prove to be useless at that time, they gain in love and satisfaction with each other. तो ये जानते हुए भी कि उस वक्त उन लोग का गिफ्ट यूजलेस हो गया, लेकिन they gain in love and satisfaction. और अपने आप को लोग they are very satisfied because every story where there is love, there has to be sacrifice. और जिसमें sacrifice नहीं है, जिसमें त्याग नहीं है, तो लव भी नहीं होता है. तो एक दूसरे का त्याग ही उन लोग के लिए सबसे सामने आ गया. That was so satisfying कि मेरे लिए इसने ये किया. So this was a very satisfying feeling, and that multiplied their love for each other. I hope answers आप लिख रहे हैं. Question 18.
Question number 18. Question number 18. Hello. Yes. ओ हेनरी की जो कहानियां हैं, वो हेनरी स्टोरीज ऑफन ब्लेंड ह्यूमर एंड पैथोस। उसमें ह्यूमर भी रहता है, उसमें बढ़ावा भी रहता है, उसमें चेयरफुलनेस भी रहता है, उसमें कुछ सीख भी रहती है, ठीक है, उसमें कुछ हौसला भी रहता है। पैथोस मतलब होता है हौसला। द डिस्क्रिप्शन of the card bearing Jim's name is an example of this. Can you identify one more example from the story? उनका नाम क्या था? उनका नाम जेम्स जिलिंघम यंग था, जो कि सिर्फ उनका डी था, बाकी सब लेटर्स गिर गए थे नीचे, उन्होंने फिर बनवाया था नहीं, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? उसमें हौसला है, उसमें ह्यूमर भी है, मतलब हंसी भी आती है पढ़ करके, ह्यूमर भी है, कुछ मजाक भी है, तो सब चीज का एक मिश्रण है, एक ब्लेंड है ओ हेनरी की कहानियों में। आंसर देखते हैं। The mention of a pier glass between the window of the room is one more example of O. Henry's humor behind the pathos. A very thin and very agile person might, by observing his reflection in a rapid sequence of longitude stripe, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered this art. तो इन लोग के पास कोई आईना नहीं था। पहले आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर को क्या कहा जाए। और जो डेला जो बाल झाड़ रही थी अपना, तो देयर वाज नो मिरर, मिरर नहीं था। एक पतली सी स्ट्रिप थी जो कि शीशे का, उसको बना ली थी अपना आईना, और वो इतनी पतली थी कि छोटा पतला सा ग्लास में भी उसकी पूरी फिगर आ जाती थी, फ्रॉम हेड टू फुट। और उसको वो बोलती थी, वो आईना नहीं है लेकिन फिर भी उसको आईना बना देती थी। तो एक कंपैरिजन है, it is an unimportant question, so you don't need to go to details about that. तो आईना नहीं होने का, घर में गरीबी इस तरह की थी कि घर में आईना नहीं था, तो कभी कभी शीशा में कभी कभी बाल झाड़ लेते हैं आप लोग, आते जाते कहीं देख लीजिए, मिरर नहीं है फिर भी शीशे में यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। रिफ्लेक्शन अगर है तब बाल झाड़ लेते हैं। तो ये बराबर, नथिंग इम्पोर्टेंट, यू डोंट नीड टू राइट दिस क्वेश्चन, बस नीड टू नो। The other example is of Deller's gift. When Jim looks at Deller's gift, he just puts his hands under the back of his head and smiles. He tells Deller to put away their Christmas presents for some time, as they were too nice to use just at that time. और दूसरा एग्जाम्पल है, जब गिफ्ट देखता है तो बोलता है कि दोनों गिफ्ट को रख दो, अभी इनका काम नहीं है, बाद में उनको देखा जाएगा। तो ये एक होता है कि हंसी भी आती है सुन करके, और एक तरह से हौसला भी आता है कि चल बाद में देखा जाएगा, अभी तो उसको रख दो। और पहले वाले में कि आईना नहीं है फिर भी, लेकिन वो आईना का इस्तेमाल कर लेती थी उस शीशे को देख करके अपने आप को। एजाइल पर्सन का मतलब है कि दुबला पतला, कोई वीक पर्सन। अगर पतली शीशे की कोई अगर अलमीरा है या विंडो है, विंडो में एक शीशा लगा रहता है, तो इतना पतला शीशा था वो, और कोई दुबला पतला पर्सन पूरी अपनी फिगर देख पाता था उसमें, और उसी को आईना बना के बाल झाड़। नंबर 1 is this. Number 2 is that
गिफ्ट देखने के बाद जिम क्या करता है, अपने हाथ को पीछे अपने he puts his hands under the back of his head और फिर बोलता है he tells Cinderella to put their gifts away, पर इसलिए कि अभी इसका कोई यूज नहीं. He tells Cinderella to put their gifts, their Christmas presents for some time, as they were too nice to use just at that time. इतने अच्छे हैं कि इसको अभी नहीं यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे. जैसे कोई चीज होती है कि हम लोग स्वीट डिश खाते हैं तो अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे. अच्छी सी कोई चीज हम बचा के रखते हैं बाद के लिए. तो एक तरह से ये कंपैरिजन हुआ. वैसे दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो. क्वेश्चन नंबर 19 is important. Who were the Magi? This question already I have told you, given you the answer. Magi थे कौन? Who were the Magi? So the Magi were the wise men. Magi is a old woman. The wise men who brought gifts to the newborn Jesus. According to the Bible, the Magi were three kings, Caspar, Melchior, and Balthasar, who traveled to Bethlehem from somewhere in the east, probably Persia. So ये तीन नाम आप लिख सकते हैं. They were the names. MCQs में तो you need to know everything, no? तो ये तीन वाइज मैन का नाम लिख लीजिए. Caspar, Melchior, and Balthasar. अरे भाई कौन है? म्यूट करो ना यार. म्यूट करो भाई. अरे मंजीत कौन है? मंजीत म्यूट करो. आप पढ़ेंगे ना, किसी को पढ़ने देंगे. श्रम कार्ड बना रहा है मैम. What is this? Do not disturb. लेबर कार्ड. Do not disturb. बताइए, what were the names of the Magi? Caspar, Melchior, and Balthazar. Scapper, Melchior, and Melchior. Balthasar तो merchant of Venice में भी आप जान चुके हैं. Who traveled to Bethlehem from Persia. Last question. What is the writer's last word to the wise of these days? सबसे ज़्यादा important. The last question is the most important question. The writer's ways that these two, Della and Jim, were the wisest of all those who give gifts. Of all who gave and received gifts, they were the wisest. They were the Magi. इसलिए कि उन लोगों ने अपना they sacrificed the most precious things which they had. Done? Hello? Yes, ma'am. जो लोग लेट आए उनको रिकैप कर देते हैं. पहला क्वेश्चन क्या था? Write down the question और आंसर आप लिखेंगे. How did Jella
How did Della save her $1.87? By bargaining. मोल भाव करके वो पैसे बचाई थी. You can write down the answers if you want to. Bargaining hard about prices with the grocer, vegetable man, and the butcher. What do you mean by grocer, ma'am? सब्जी या ग्रीन ग्रोसर या ग्रोसरी, जब जहाँ पर चावल दाल आटा मिलता है, ग्रोसरी शॉप. Okay. And bargaining means. मोल भाव करना. बार्गेनिंग में तोल भाव वो करना। मोल भाव करना. Okay, ma'am. इतने पैसे नहीं, इतने पैसे देंगे, उतने नहीं देंगे, इतने देंगे. तो इस तरह से हिगलिंग करके, बार्गेन करके, मोल भाव करके वो पैसे बचाए थे. एक एक करके वो पैसे गिन गिन के बचाए. Butcher means meat shop. What, ma'am? Butcher मतलब मीट शॉप होता है. वेजिटेबल मीट शॉप, हर जगह वो बार्गेन करके उन्होंने पैसे बचाए. आई थिंक आपने 5 क्वेश्चन मिस किया था आपने, वो लिख लेते हैं. The writer gives details of Jim's flat. Pick out the details. उसका एक पुराना सोफा था, एक worn out मतलब पुराना रंग उड़ा हुआ सोफा सेट था, और कुछ था खास नहीं. एक लेटर बॉक्स था, और एक नेम प्लेट था जिसका सिर्फ डी था लगा हुआ, बाकी सब गिर गया था लेटर्स. एंड एक कॉल बेल था जिसकी जो कि वर्क नहीं करता. मतलब चिट्ठी कहीं आगे जाती नहीं थी, घंटी जो कभी बजती नहीं थी, कोई उनके घर आता जाता भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3. यस मैम, 3 का ट्रू होगा. होगा. सही. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. ये सब एमसीक्यूज में आता है आपको. व्हाट वर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स? Jim's watch and Della's hair. क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्क्रिप्शन है. कैसे कंपेयर किया गया था क्वीन ऑफ शीबा से डेला के बाल को. तो डेला, ये राइटर ये कहते हैं कि जब डेला ये सोचती थी कि अगर क्वीन ऑफ शीबा मेरे घर के सामने रहती तो हम अपने बाल को बालकनी में सुखाते और वो उसको देख के जलती, कि सारा ज्वेलरी एक तरफ होता और उसके बाल एक तरफ. वो इतना प्रेशियस था, इतना प्रेशियस कि उसको भी जलन हो जाती. क्वेश्चन नंबर 6. मैम, हाँ. किस बात पे मतलब जलन होता था वो बताइए ना. उसके बाल इतने बड़े थे, इतने अच्छे थे, क्वीन ऑफ शीबा को भी उसको देख के जलन हो जाता कि सारी प्रॉपर्टी एक तरफ और उसके बाल एक तरफ. ओके. किसी के बहुत सुंदर बाल है तो वो जलेगी नहीं कि आगे काश मेरे भी ऐसे बाल होते.
वो कंपेयर किया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 भी वही बात है. हाउ हैज द राइटर कंपेयर्ड जेम्स वॉच टू किंग सोलोमन्स ट्रेजर्स. तो किंग सोलोमन भी एक काल्पनिक कहानी है जो कि एक किंग ही है. उनका ट्रेजर्स, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी whatever he had, jewels, उनकी टोटल संपत्ति ट्रेजर्स. तो जिम ये राइटर भी कह रहा है कि जिम ये सोच रहा था कि अगर ये मेरे घर का चौकीदार होता तो जब भी मैं उसके पास से गुजरता तो हर बार मैं अपना टाइम देखने के बहाने घड़ी निकालता ताकि वो देख करके वो चौकीदार भी जलता. चौकीदार मतलब नहीं समझ रहे मैम. दरबार. The writer says that had King Solomon been the janitor, कि अगर किंग सोलोमन चौकीदार होता तो, दरबान होता तो, with all his अपनी पूरी वो संपत्ति के साथ piled up in the basement, और सारी संपत्ति के साथ वो खड़ा होता, फिर भी Jim would have pulled out his watch. जब भी वो पास करता तो निकालता अपनी घड़ी टाइम देखने के बहाने और किंग सोलोमन देख के जलता, उसकी घड़ी को देख के जलता. Yes, I understood. The concept is content should be clear ताकि MCQs आप कर सकें. डिटेल की पढ़ाई इसीलिए हो रही है so that कहीं concept में कोई ग्रे मैटर में नहीं रह जाए. Why did seller decide to sell her hair? तो सब जानते हैं पैसे नहीं थे उसके पास and she wanted to give gift to Jim. That is why she sold her hair. मैं 1.87 वो मतलब उतना बच गया क्या मैम? क्या 1.87 क्या और उसका हेयर जो बिका हुआ था वो दिया हुआ लास्ट में क्वेश्चन में आंसर में मैम 1.87 क्वेश्चन में 7 में का आंसर 1.7 में कुछ दिया वो नहीं. क्या था? Della wanted to buy a gift for Jim and she had only $1.87. इतने पैसे ही उसने बचाए थे ना. पहला वो देखिए यस मैम उतना कि वो $1.87. हाँ समझ गया उतना बचाए थे सेव किए थे. यस मैम आई अंडरस्टूड. तो उतने ही पैसे ही थे उसके पास. So Della wanted to give a gift for Jim, but she had only $1.87. पहले आप पढ़ ही चुके हैं. Which was not sufficient to buy any gift. वो enough नहीं था. तो वो क्या करती है? Hence, इसलिए she decided to sell her hair and buy a good gift for the money she would get. Next question MCQ में काम आता है आपको. How much money did she get for her hair? She got $20 for her hair. बाकी तो आपने लिखा होगा ना, उसके बाद आप ज्वाइन कर ही लिए थे. यस मैम. चलिए ये क्वेश्चन आंसर गिफ्ट ऑफ मिजाई का तो ऑलमोस्ट डन है और बाकी रहा आपका प्रेजेंटेशन. वो आप कब देंगे आप बताइए. प्रेजेंटेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. एंड आप लोग के क्लास में हम BSCIT 445 एंड BCA 445 में हम ले रहे थे. डायरेक्ट इंडिकेज खत्म हो चुका था ना. यस मैम. तो खत्म हो गया था क्या?